once again. And today, our special guest, as I mentioned, is Lieutenant Colonel Ankita Srivastav, who is a retired Army officer. The recent letter by a very senior officer, which is said to be a leaked letter from the inside of the army. So it was by a very senior officer, Lieutenant General Puri sir, and it says that the women in the armed forces, as we have seen in the recent years, like in last year in 2023, 108 officers who were promoted to the rank of the colonel for the becoming the commanding officers in the various battalions. So the letter discusses about 8 of them, and it says that women, those commanding officers, they have the ego issues, they have the decision making issues and whatnot. A lot of things are there mentioned in that. So we have a very special guest today, and we'll be discussing all the things about that. And I think there is we cannot have a better guest than ma'am herself, and because she has served in the army and she was one of the first lady cadets in the officers training academy. So ma'am, please tell us about the recent issue which is going on, and also we'll be discussing about your journey and about your challenges which you have faced in the army. So please, over to you, ma'am. Okay, thank you for having me here. Yes, there is a huge debate in the country right now about this letter by a senior officer from the rank of a General Puri sir basically has written this letter. So let me tell your lovely audience, first of all, पहले तो आप लोग घबराइए मत, कुछ वॉर नहीं डिक्लेयर हो रहा है लेडी ऑफिसर्स या मेल ऑफिसर्स के बीच में. दिस नथिंग. ये सब टीदिंग प्रॉब्लम है. जैसे हम कोई चीज नई शुरू करते हैं तो टीदिंग प्रॉब्लम आती है. आई एम फ्रॉम दोज बैक, एकदम इनिशियल, जब आज से 32 इयर्स बैक, जब इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया होगा कि इंडियन आर्मी में विमेन इंडक्शन शुरू होगा. 1992 में पहला बैच स्टार्ट किया गया, सारी कार्रवाई शुरू की गई, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह. बट उसके पहले जो 1-2 साल पहले इतनी डिबेट्स हुई, इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन. आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि व्हाई women should come in the army or navy or air force, and there must be certain sector of people who must be saying no, why shouldn't they come in the army, why shouldn't they join army. So there had been a lot of debates, but ultimately they decided to induct women for 5 years only. It was accepted कि ठीक है, कोई नहीं, हम एक 5 years के लिए ही रखेंगे और इसके अलावा देखेंगे एक्सपेरिमेंटल बैच. The first 5 batches हम देखते हैं. And I happen to be from the 3rd batch of Indian Army lady officers, and I'm the first girl from Allahabad to join Indian Army in 1993. Out of 25 girls, I was the 6th in the merit at that time. And हम 25 girls को ही लेते थे उस जमाने में. अब जब हम 4th year of service में पहुंचे तो ये एक स्टडी हुई, एक एनालिसिस हुई, जो कल आप लेटर देख रहे हैं, मैं जहां तक समझ रही हूँ, इट इज पार्ट ऑफ एन एनालिसिस, इट इज पार्ट ऑफ अ स्टडी. यस, गलत ये हुआ है कि वो लीक हो गया है इन द मीडिया, बट कहीं ना कहीं एक स्टडी का प्रोजेक्ट है, एक एनालिसिस का है, कि ऑब्जर्वेशन है और ये सब रेक्टिफिकेशन करने हैं. देयर आर सर्टेन वेज एंड मीन्स टू थिंक अबाउट, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें हाउ टू इम्प्रूव द शॉर्टकमिंग्स. अब जब हमें इंडक्ट किया गया था 1992 में, डेफिनेटली देयर वर मेनी शॉर्टकमिंग्स नोटिस की गई होंगी. हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड, लेट मी टेल यू, उस टाइम में आज से 32 इयर्स पहले जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे ड्यूरिंग द एकेडमी ट्रेनिंग में, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेरबदल भी करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे. मे बी बिकॉज हमारा जो माइंडसेट था, भले ही हम सब करने के लिए तैयार थे, मगर किसी की हाइट कम थी तो किसी का फिजिकल स्टैमिना उतना नहीं था जितना एक होना चाहिए था. नॉट फॉर अ लेडी ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब सही था, कुछ तो पैरामीटर्स डेफिनेटली उस समय कम रखे गए थे. इवन मेन ऑफिसर्स और विमेन ऑफिसर के जो दौड़ने के टाइमिंग्स हैं, जो पैरामीटर्स है, उसमें भी फर्क था थोड़ा बहुत. क्यों? क्योंकि वी वर द एक्सपेरिमेंटल बैच. क्योंकि एकदम से कोई आर्मी ये नहीं करना चाहता था हमें डाल दे और हम सब वहां पर धाराशाही हो जाए, बिकॉज सबको डर था, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि हम करेंगे क्या.
क्या हम इतनी सख्त ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? ऑब्वियसली लॉट ऑफ एनालिसिस वाज देयर. नाउ फोर्थ ईयर में रिपोर्ट आई कि यस दीज लेडी ऑफिसर्स आर डूइंग फैंटास्टिक, या कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, कोई रो नहीं रहा, कोई गा नहीं रहा, दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट दे हैव बीन टोल्ड. एंड द पैरामीटर्स जो सेट किए गए थे एक वुमेन ऑफिसर को दिमाग में रख के, माइंड यू पुलिस एकेडमी विजिट की गई थी, माइंड यू जहां पर लेडी पुलिस कैडेट्स ट्रेन होते थे, पुलिस ऑफिसर्स, उनकी एकेडमी भी विजिट की गई थी बिफोर मेकिंग ऑल दोस पैरामीटर्स. कहीं ना कहीं बहुत स्टडी गई थी इसमें भी. अब उस दौरान किसी ने डेफिनेटली बोला होगा भाई इनके लिए स्टैंडर्ड्स क्यों चेंज किया जाए, इनके लिए ये क्यों चेंज किया जाए, बट करना पड़ा somehow, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है. आई मीन लेडी ऑफिसर्स की कोई गलती नहीं है कि हमने नहीं कहा था कि स्टैंडर्ड चेंज. अगर ये पहले दिन से सारे स्टैंडर्ड सेम होते या सारी चीजें सेम होती, कहीं कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होता, हो सकता आज ये डिबेट हम नहीं कर रहे होते, है ना. तो 32 years बैक से जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां से हम देखते हैं. So the fourth year of service, we had a report that these women officers are excellent and they can work at par with male officers. तब comparison क्या था? Male officer, women officer, male officer, women officer. That's it. अब comparison नहीं था और कुछ आपके पास. जवान जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया था, हमने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, हमने अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट एंड अडेप्टेशन, एंड वी एक्सेप्टेड. We were aligning, they were aligning, I was being accepted, they were accepting me, I was accepting them. तो एक टू वे प्रोसेस चल रहा था और ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चीजें चल रही थी. ओके, नाउ व्हेन आई केम इनटू द 10th year of service, जब पहला बैच 10th year of service में आया तो कहीं ना कहीं एनालिसिस फिर से होती रही, क्या हम इनको 10 के बाद भी रखें. उस एनालिसिस में कुछ ये हो गया, कुछ देरी हो गई, और उस देरी के चक्कर में फर्स्ट एंड सेकंड बैच घर जाना पड़ा. दे वर आउट ऑफ द इंडियन आर्मी, फर्स्ट बैच एंड द सेकंड बैच. सो अब आप देखिए, पहला और सेकंड बैच घर चला गया, अब मेरा थर्ड बैच था. मुझे समझ में आ गया कि हमें कहीं ना कहीं राइट फोरम में जाके, और मुझे ये पता चला उस दौरान कि हाईएस्ट लेवल पे ये अग्री कर चुके हैं कि, और नेवी एंड एयरफोर्स ऑलरेडी दे हैड एक्सटेंडेड अप टू 15 years. तो चूंकि नेवी और एयरफोर्स ने कर दिया था, मगर यहाँ डिबेट चल रही थी बिकॉज नेचर ऑफ आर्मी ड्यूटी इज डिफरेंट देन नेचर ऑफ एयरफोर्स एंड नेवल ड्यूटीज. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन इट विद इन द हाउस, शुड वी एक्सटेंड, शुड वी नॉट. फिर अगेन वही एनालिसिस हुई, अगेन डिबेट्स हुए, अगेन केओस हुआ, अगेन चैलेंजेस हुए, अगेन ब्लेम भी हुए होंगे, अगेन बहुत सारे डाउट्स आए थे, बहुत सारे लोगों में डाउट्स आए. बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इंडियन आर्मी, दे पुट faith in us and extended it up. From my batch onwards, it became 14 years. I am the pioneer batch of lady officers of Indian Army that completed 14 years. Got it? So still it was not a permanent commission. इतने सालों के बाद भी अभी भी लेडी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा था. एंड आई गेस इट वाज द ईयर 2018 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अनाउंस किया था कि all the women officers who are serving in this short service, they will be eligible for the permanent commission. और उसके बाद lot of debates were there all around the country. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया 2020 में कि परमानेंट कमीशन के लिए उनको भी लिया जाए, एंड देन देयर वाज आई थिंक इन द ईयर एलिजिबिलिटी किया जाए उनको. यस. And then in 2023, out of I think more than 250 officers, 108 officers were promoted to the rank of colonel. तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुका था? Because I think it's already 75 years of the independent, and last year we had this permanent commission kind of thing for the women in the armed forces. Why so delayed? Why so late, you mean to say? Yeah. Okay, I will not blame the government or India or army or navy or anybody. See, it's a process. We are all evolution एक हो रहा है. आप देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके नानी के जमाने में नहीं था ना ये स्लोगन, मेरे दादी के जमाने में ये स्लोगन नहीं था. So we have to applaud the progress and the evolution our country, our society,
our defense forces are moving. अब मैं ये बोलूं कि नानी के जमाने में क्यों नहीं आर्मी में भर्ती करी गई, मेरे दादी के जमाने में क्यों नहीं किया, वाई मेरे जमाने से क्यों शुरू हुआ? सो और आगे अनदर मे बी व्हेन आई विल बी 90 years old, आगे के 2-3 generations, उनके टाइम में शायद मैं पहला जनरल लेडी ऑफिसर देखूंगी, मे बी अनदर 10 years, मे बी अनदर 20 years, यू नेवर नो। एनडीए में पहुंच गई हैं लड़कियां, तो ये सोसाइटी में तो चेंज आता ही रहता है, चेंज ही नहीं होगा, हम लड़ेंगे नहीं किसी चेंज के लिए, हम कुछ आगे नहीं कैसे बढ़ेंगे? आई मीन यू कांट गेट एवरीथिंग। जिस दिन प्लैनेट बना था इंडिया अर्थ का, उसी दिन थोड़ी ना सब कुछ आ गया आपके पास। Correct, correct. But I think, ma'am, there is a lot of things still need to be changed because अभी हम रिसेंट में देखते हैं कि our president of India is a female. हमारी प्राइम मिनिस्टर फीमेल रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी आर्म्ड फोर्सेस में जो एक परसेंटेज जो होता है वुमेन ऑफिसर्स का, दैट इज वेरी लेस. सो what are the things which you think that this percentage in the armed forces for the women can be increased? Okay, yes, I feel the percentage can be increased. The number of intake can be increased for the women officers. अब जैसे एनडीए में खोल दिया गया है, शायद वहां पे एक फिगर थोड़ा सा, अब जब सक्सेस देखी जाएगी, देखो कोई भी चीज स्टार्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है, इट हैज टू बी ऑब्जर्व फॉर द सक्सेस. आप कोई भी मिसाइल, आप कोई भी प्रोजेक्ट, आप कोई भी डीआरडीओ के साइंटिस्ट से पूछेंगे, कोई भी चीज पे बहुत रिसर्च होता है, बहुत गहन अध्ययन होता है उसके ऊपर, फिर आप लॉन्च करने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको कहाँ जाके लैंड कर रहा है, कहाँ जाके वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर बहुत सारे माइंड्स जाते हैं. यस, जैसे कि हम डिबेट आज की सुन रहे हैं जैसे, और सब जगह हो रहा है, इनटेक बढ़ाया जा सकता है women officers का, because seeing the population of India, yes, number one, number two, seeing the willing population of India, those who want to join the forces. There are a lot of women who are wanting to join the forces, lot of young aspirants, and I'm very happy to see कि आज लोग इतने पैशनेट हैं ज्वाइन करने के लिए. मेरे टाइम में मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, मैंने तो कभी किसी विमेन ऑफिसर को ही नहीं देखा था यूनिफॉर्म में. आई एम सेइंग दिस विद ग्रेट प्राइड कि आज आपके चैनल के माध्यम या आपके इंटरव्यू के माध्यम या आपके थ्रू माध्यम में जो यंग लोगों के पास पहुंच सकती हूँ, तो मुझे ये लगता है ये मेरा मिशन एक कंप्लीट हुआ कि मैं किसी को गाइड कर दूं या मैं किसी को एक थोड़ा सा होप दे दूं, बिकॉज आई वांट टू डू दैट एंड आई कैन डू some kind of a hand holding kind of a thing.